Good morning, everyone. थोड़ी सी कम. So let's wait for 1 or 2 minutes, then we will start. Let's start. Last lecture started second chapter, right? Topic we have seen. Hello. Hello. Am I audible? Yes, sir. What we have seen in last lecture? So फटाफट.
भूल गए क्या लेक्चर? Have we started asymptotic notation? No, sir. तो एनालिसिस पार्ट स्टार्ट नहीं किया था, मतलब पोलिनोमियल डिग्री साइज ऑफ एरे। हाँ, प्रॉपर एसिम्प्टोटिक नहीं हुआ था, वो हाँ, उसके रिलेटेड टॉपिक्स हुए थे। हाँ, सो वर्स्ट केस, बेस्ट केस, एवरेज केस, राइट? Yes, sir. Okay, good. Then how we can compare, can we compare execution time if you want to compare two algorithm? अगर हमें दो algorithm को compare करना है तो हम उसके execution time को compare करके can we analyze those two algorithm? No, sir. Why? Because, sir, execution time depends on various parameters. I mean, if I take the Good, simple good, good. example, हाँ, perfect. हाँ, चलो बोलो, example क्या था? like if I'm taking two machines, okay, one is Core 2 Duo have processor of Core 2 Duo, one is having Core i7, okay. Good. And if I'm running an algorithm, then definitely if I'm running the algorithm taking the maximum time in Core i7 and algorithm taking the most efficient time in Core 2 Duo, definitely Core i7 processor will execute the algorithm faster. So we will think that the algorithm which has been done in Core i7 is much more efficient. So we can't judge the algorithm efficiency just on execution time. Good. And can we consider number of statement to be executed? दो algorithm को compare करने के लिए हम number of statement को consider कर सकते हैं? No, sir. Why? Sir, because number of statements, if we assume that each statement is taking 1 unit of time, okay. Now, if one algorithm has been written in 10 lines and other is written in 3 lines, okay. So just by seeing, we will think that the three algorithm which has been written in 3 lines will take less time, okay. But now, if the 3-line algorithm contains a for loop and the 10-line algorithm does not contain any for loop, then the whole, the time efficiency will be changed. So we can't just, assume that this algorithm will be efficient based on the number of statements. We need to analyze which kind of statements are there in the algorithm. Good. Right. So based on this thing, we will proceed towards asymptotic notation, right? So basically, like your analysis technique will not be depend on the parameters which is out of the range of algorithm concept, right? जैसे कि execution time है, execution time is totally depend on machine, right? So you cannot compare your algorithm based on execution time. Again, number of statements. So number of statement is directly proportional to the programming style of particular programmer, right? So that is not an algorithm, that is a program, right? So you cannot compare your algorithm based on the program, right? So what we can do? So you can compare two algorithm with running time fn and gn, right? We need to calculate rough measure to analyze. Like जो चीज अभी हम प्रैक्टिकल में थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया है कुछ लैब में, लाइक अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, कुछ लैब में थोड़ा सा एक स्टेप आगे चल रहा है, ठीक है? सो ऑन एन एवरेज अभी स्टार्ट तो एटलीस्ट हो ही चुका है, ठीक है, लैब पोर्शन में। तो वहां पे जो हम कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा बहुत रफ कैलकुलेशन हमें करना होगा, राइट, in asymptotic notation, right? So basically rate of growth is a very good parameter to compare two algorithm, because our algorithm is directly depend on number of input, quality of input, right,
कि आप कितने, जैसे शॉर्टिंग का एल्गोरिथम है, आप 5 नंबर लोगे और 25 नंबर लोगे तो डेफिनेटली आप लाइक नियरली शॉर्टेड डेटा भी लिया हुआ है तो 25 डेटा के अंदर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ज़्यादा ही टाइम चाहिए, राइट? क्योंकि एक ही स्टेप में उसको 24 टाइम्स कंपेरिजन करनी है, राइट? सो 110%, और वो 5 डेटा के अंदर आप वर्स्ट केस भी यूज करोगे तो हर एक स्टेप में कैलकुलेट करोगे तो भी अप्रॉक्स 25 कंपेरिजन होंगे, ठीक है? तो जो यहाँ पे एक स्टेप है वो वहाँ पे पूरा का पूरा एल्गोरिथम है, ठीक है? तो ये जो पैरामीटर्स है दैट आर क्रूशियल, जो प्रैक्टिकल लिस्ट में ऊपर जो 5 पॉइंट लिख कर रखे हैं, एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे के सारे क्रूशियल है, राइट? सो मेजोरिटीली वी शुड फोकस ऑन रेट ऑफ ग्रोथ, कि भाई आप इनपुट कैसे बढ़ाते हो, ठीक है? और आप जैसे जैसे इनपुट को इंक्रीज करते जाते हो वैसे वैसे आउटपुट के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, ठीक है? इफ यू आर टेकिंग इनपुट इज इक्वल टू 5 और आउटपुट आपका x आता है, और इफ यू आर टेकिंग इनपुट इज इक्वल टू 10 और आपका आउटपुट 2x आता है, तो डेफिनेटली ग्रोथ जो है वो सीक्वेंस होगा, क्योंकि सी यू कैन नॉट लाइक राइट अ पैराग्राफ व्हेन यू आर राइटिंग एनालिसिस ऑफ एनी एल्गोरिथम, कि आप पूरा करो पैराग्राफ नहीं लिखोगे कि भाई ऐसा इनपुट होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, नो, यू कैन नॉट राइट लाइक दिस, यू नीड टू गिव एनालिसिस विथ कॉन्क्रीट प्रूफ और एक लाइक मैथमेटिकल डेरिवेशन, ऐसा कुछ भी होना चाहिए, ठीक है? ऑन देन योर आउटपुट शुड बी लाइक इन वन लाइन और मे बी इन फ्यू वर्ड्स, ठीक है? सो दैट कैन बी द प्रॉपर एनालिसिस ऑफ योर एल्गोरिथम, ठीक है? एंड ऑन दैट बेसिस वी कैन कंपेयर टू एल्गोरिथम, राइट? क्योंकि कई सारे एल्गोरिथम ऐसे हैं कि जो कम इनपुट के लिए बहुत अच्छा आउटपुट देते हैं, कई सारे एल्गोरिथम ऐसे भी हैं जो ज्यादा इनपुट के लिए अच्छा आउटपुट देते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले लो, रेडिक्स शॉर्ट है। रेडिक्स शॉर्ट बेसिकली फोकस्ड ऑन लाइक डिजिट पोजीशन, इनिशियली 10⁻0 के पावर में जो डिजिट पोजीशन है वहां पे जो भी डिजिट है उसके ऊपर वो फोकस करता है, देन 10⁻1, देन 10⁻2, देन 10⁻3। नाउ इफ यू आर यूजिंग दैट टेक्निक फॉर लॉन्ग इंटीजर, अब भले ही आपके 5 ही इनपुट है, स्टिल दैट एल्गोरिथम विल नॉट वर्क एफिशिएंटली। और अगर मान लो कि आपका मतलब 3 या 4 डिजिट के नंबर है और वहां पे 2-3 हजार भी होंगे, ठीक है? इवन 4 डिजिट में आप मैक्सिमम 10,999 नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हो, आप वहां पे 9,500 नंबर भी लोगे और उसको शॉर्ट करने का ट्राई करोगे तो यू विल गेट बेटर एफिशिएंसी। हाँ बोलो। कैन यू स्टार्ट द रिकॉर्डिंग प्लीज? हाँ, so in that way you need to focus on these kind of parameter, quality and quantity, right? If you are just ignoring these two things, then definitely you cannot analyze your algorithm efficiently, right? Now, so in asymptotic analysis what we will do, so to compare two algorithm with running time fn and gn, यहाँ पे दो algorithm लिए गए हैं, one for one algorithm just a minute, ओके, यहाँ पे पीपीटी चला रहा हूँ, मतलब इसमें सारी चीजें बीच में जो बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। हाइलाइटर स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है? जस्ट अ मिनट। कौन से पंक्ति निकालना है वो आपको पता होना चाहिए, कौन सा मैंने करवाया। ओके, तो मीनिंगफुल होना है, दैट इज मीनिंगफुल। ओके, वंस द सेंटेंस स्ट्रक्चर इज अंडरस्टूड, मैंने जैसा meaning of a sentence, that is the semantic analysis. What is that means assignment at home. अभी हम और उसने किसको बोला, किसको बोला
लेवल है हमारे पास ये जो है अमीफा, तो ये एक इतना ओके, तो यहाँ पे यू हैव टू डिफरेंट एल्गोरिदम और दोनों ही एल्गोरिदम की जो रनिंग टाइम है, लेट्स टेक कि मतलब एक का रनिंग टाइम fn है, दूसरे का रनिंग टाइम gn है. नाउ वी नीड टू डू अ रफ मेजर दैट कैरेक्टराइज हाउ फास्ट ईच फंक्शन ग्रोज. सी हमें सिर्फ और सिर्फ fn और gn को कंपेयर नहीं करना है, राइट. तो मैंने अभी कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको बताया कि लाइक इट माइट पॉसिबल कि फ्यू एल्गोरिदम विल वर्क ऑन लेस अमाउंट ऑफ डेटा. कुछ ऐसे भी होते हैं दैट वर्क्स बेटर ऑन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, राइट. कई बार उसकी लेंथ इंपॉर्टेंट होती है, वो शॉर्टर लेंथ के लिए ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, लॉन्गर लेंथ लॉन्ग इंटीजर के लिए ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं. सो इन दैट वे यू नीड टू कैरेक्टराइज how fast each function grows, right. So the parameter name is use of rate of growth. So generally we will use rate of growth for comparing to different algorithm in asymptotic analysis, right. So compare functionality in the limit that is asymptotically for large value of n, right. See हमें एक स्पेसिफिक लिमिट के अंदर, वो इनफाइनाइट के लिए चेक नहीं करना है, ठीक है. हमें एक सर्टेन लिमिट के अंदर ही चेक करना है, बट दैट लिमिट शुड नॉट बी लाइक स्मॉल नंबर, ठीक है. इट शुड बी लार्ज नंबर, लार्ज वैल्यूज ऑफ एन, राइट. कि एन की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है उसकी जो रेंज है, वी नीड टू कवर मैक्सिमम रेंज, ठीक है. हाँ, मान लो कि 2 डिजिट का नंबर है, सो व्हाट विल बी द योर हाईएस्ट नंबर 99, ठीक है. तो योर रेंज विल बी 0 to 99, राइट. So we can cover, we can take input like 0, 1 to 10, 20, 30, 40, 90, 95, 97, right? These kind of inputs can be taken. Now, what do we mean by rate of growth? So consider the example of buying elephant and goldfish. See, cost of elephant plus cost of goldfish, right? And कॉस्ट इज नियरली इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एलिफेंट, क्योंकि गोल्ड फिश कितने की आती है अप्रोक्स. कॉस्ट गोल्ड फिश की क्या होगी? आप में से कई लोगों के घर पे शायद एक छोटा मोटा एक्वेरियम या आप मतलब ऐसा कुछ रखते होगे, फिश पॉन्ड जैसा. और एलिफेंट की कॉस्ट कितनी होती है? डेफिनेटली गोल्ड फिश की जो भी कॉस्ट है उससे एलिफेंट की कॉस्ट काफी, एलिफेंट तो मतलब लैक्स में होता है, गोल्ड फिश कुछ लाइक थाउजेंड्स में या हंड्रेड्स के अंदर आपको आ जाती है. एक गोल्ड फिश की बात कर रहा हूँ, राइट. सो डेफिनेटली वी कैन से दैट कि भाई टोटल कॉस्ट इज नियरली इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एलिफेंट, क्योंकि मान लो कि 5 लाख इज द कॉस्ट ऑफ एलिफेंट और 500 रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ गोल्ड फिश, ठीक है. सो डेफिनेटली वी कैन इग्नोर 500 इफ वी कंपेयर इट विथ 5 लाख, ठीक है, क्योंकि उसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी 5,500,000 रुपीज, right. So which is nearly equal to 5 lakh, because see we don't know exact cost of elephant and we don't know exact cost of goldfish, ठीक है. वो आज 2021 की बात है. अब सेम चीज आप 2015 में कंपेयर करो. सो डेफिनेटली मान लो कि फॉर एग्जांपल अभी एलिफेंट की कॉस्ट 5 लाख रुपीज है, सो एट दैट टाइम अप्रोक्सीमेटली 3 लाख 3.5 लाख के आसपास होगी. सो सिमिलरली गोल्ड फिश की कॉस्ट भी 300 to 400 की रेंज में होगी, अगर आज उसकी कॉस्ट 500 रुपीज है तो, राइट. सो अगर उस सिनेरियो को भी हम कंपेयर करें तो क्या होगा, 3,50,000 प्लस 400 रुपीज अगर हम करते हैं तो विच इज नियरली इक्वल टू 3,50,000 रुपीज, ठीक है. और आज से 10 साल बाद की बात करें तो वहां पे मान लो कि एलिफेंट कुछ 15 लाख के आसपास का होगा और गोल्ड फिश कुछ 2,000 के आसपास की होगी, राइट. सो अगेन 15 लाख प्लस 2,000 रुपीज आप करो तो विच इज नियरली इक्वल टू 15 लाख. सो वी डोंट नो एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ एलिफेंट, वी डोंट नो एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ गोल्ड फिश, बट हाँ वी कैन से दैट कि कॉस्ट ऑफ एलिफेंट प्लस कॉस्ट ऑफ गोल्ड फिश विच इज नियरली इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एलिफेंट. अंडरस्टूड या कुछ डाउट है? आप ये तो बोल ही सकते हो ना कि भाई मुझे एलिफेंट की कॉस्ट नहीं पता है, ना तो गोल्ड फिश की कॉस्ट पता है, बट आई नो रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ एलिफेंट एंड कॉस्ट ऑफ गोल्ड फिश विच इज टू हाई. मतलब ये दोनों रेशियो में बहुत ज्यादा डिफरेंस है.
So definitely we can say that कि भाई cost of elephant plus cost of goldfish which is nearly equal to cost of elephant, right? Which shows the approximate value. Everyone clear? Yes or no? Yes, sir. Good. So same way, मान लो कि the lower order terms in a functions are relatively insignificant for larger. मान लो कि आप कोई भी एल्गोरिदम ऐसा कुछ है जहां पे आप ऐसे अलग अलग चीजों को कंपेयर करते हो और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कुछ लिखी है ऐसा है n⁴ प्लस 100 n² प्लस 10 n+50, राइट? सो विच इज नियरली इक्वल टू n⁴, क्योंकि सी आप यहाँ पे n की कोई भी वैल्यू पुट अप कर लो, राइट? आपको ये जो है वो आपको नियर अबाउट सेम मिलेगा। हाँ, लार्ज एन के लिए फिर आप बोलोगे सर n=1 रख के देखते हैं, नो, फिर वहां पे आपको आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि 1⁴ इज इक्वल टू 1 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 50 विच इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपको स्मॉल अमाउंट के लिए ये इक्वेशन को नहीं देखना है, वी विल मेजोरिटीली फोकस ऑन लार्ज एन, ठीक है, जहां पे एन की वैल्यू लार्ज होगी, राइट? सो वी विल बेसिकली फोकस ऑन लार्ज स्केल ऑफ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, कि मतलब सपोज आपको क्विक शॉट है तो लाइक आपको ये नहीं सोचना है मैं 3-4 इनपुट लेके उसको देख लूंगा, नो, यू शुड थिंक भाई 300 500 10,000 इनपुट है तो क्या करना है, राइट? सो ऑलवेज गो फॉर द लार्ज, और नियरली सेम एनालिसिस आपको स्मॉल नंबर के लिए मिलेगा, क्योंकि देखो एक लाइक प्रैक्टिकली बात बोले तो अगर आप 5 नंबर लेते हो और आप कोई भी शॉर्टिंग एल्गोरिदम ले लो, ठीक है, सबसे एफिशिएंट सबसे वर्स्ट ये सारे एल्गोरिदम आप एनालाइज कर लो, जितने भी आपको आते हैं 10-15 शॉर्टिंग एल्गोरिदम आपको आते हैं, सारे के सारे एनालिसिस कर लो, ये सब कुछ कर लो। ये सब कुछ करने के बाद आप कोई भी एक मान लो कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई क्विक शॉट इज बेस्ड इन पर्टिकुलर डेटा, ठीक है, राइट? आपको ऐसा कुछ लगता है, अब आप उसको शॉर्टिंग करोगे, अब थोड़ा सा अगर डेटा के अंदर चेंज आ गया तो आप ये सारी चीजें फिर से एनालाइज करने जाओगे, और वो भी सिर्फ 5 डेटा के लिए। उससे बेटर तो क्या है कि रैंडमली आप कोई भी एल्गोरिदम ले लोगे ना, तो आपने जो एनालिसिस के लिए टाइम निकाला हुआ है उससे 5% टाइम के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो वी विल नॉट फोकस ऑन मतलब ऐसे छोटी वैल्यू के लिए, ठीक है, जो मतलब 2-4 वैल्यू 5 वैल्यू 10 वैल्यू को मतलब शॉर्ट करना है, इवन आप लीनियरली भी एक एक सर्च करके रख दोगे तो भी मतलब आपको आंसर क्विकली मिल जाएगा। इंसर्शन शॉर्ट में भी आपको आंसर काफी क्विकली मिलेगा, right? So that will be the benefit. Okay, so in that way we should consider that ki if we have equation n⁴ plus 100 n² plus 100 n plus 50 which should be nearly equal to n⁴. So we say that n⁴ plus 100 n² plus 100 sorry 10n plus 50 and n⁴ have the same rate of growth. दोनों का जो rate of growth है which is nearly equal. Got it? Yes, sir. Right? So अब हम क्या करेंगे, इसीलिए सी आपकी लैब 5 CSC 1 या फ्राइडे को ए और बी बैच की लैब में मैंने ये थोड़ा करवाया था, राइट? कि जो आपका फॉर लूप वाला पार्ट था, बेसिकली वी हैव फोकस्ड ऑन दैट थिंग ओनली। क्यों? क्योंकि बाकी के जो स्टेटमेंट थे, प्रैक्टिकल नंबर 1.1 की बात कर रहा हूँ, राइट? सो बाकी के जो स्टेटमेंट्स थे दैट विल एग्जीक्यूट डेफिनेटली फॉर वन टाइम ओनली। ठीक है, अब फॉर लूप जो है वो जनरली कितनी बार एग्जीक्यूट होती है? जस्ट मिनट, n+1।
राइट। सो वहां पे हमने क्या किया था कि फॉर लूप को ही मेजोरिटीली कंसर्न किया था, क्योंकि सी फॉर लूप की जो इटरेशन है दैट आर नॉट फिक्स्ड, राइट। इट माइट पॉसिबल कि फॉर लूप 5 टाइम्स या 10 टाइम्स या 20 टाइम्स रोटेट हो सकती है, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन योर इनपुट। सो दैट इज योर डायनेमिक पैरामीटर। अब बाकी के जो स्टेटमेंट्स है वो तो स्टैटिक है, वो 5 स्टेटमेंट है तो उसको 5 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के लिए 5 यूनिट ऑफ टाइम लगता है, ठीक है, विच इज डिपेंडेंट ऑन योर प्रोसेसर एंड योर प्रोग्रामिंग स्किल, ठीक है। तो वो एल्गोरिथम का कंसर्न नहीं है, राइट। सो वी कैन इग्नोर इन अजम्प्टोटिक, सी अजम्प्टोटिक नोटेशन की मैं बात कर रहा हूं, इट डजंट मीन कि एल्गोरिथम एनालिसिस में उसको कभी कंसीडर नहीं करना है, बट अजम्प्टोटिक नोटेशन ये जो एनालिसिस की टेक्निक है, इट इज स्टैंडर्ड टेक्निक which is like used by most of the algorithm या most of the mathematician, ठीक है, कि जो बेसिकली एल्गोरिथम को या तो एनालाइज करते हैं या तो उसको डिजाइन करते हैं, वो लोग ने इस पर्टिकुलर टेक्निक को थोड़ा स्टैंडर्डाइज कंसीडर किया हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू दैट टेक्निक वी कैन इग्नोर दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट, बिकॉज टोटल एग्जीक्यूशन टाइम में उसका जो रोल है वो कंपैरेटिवली बहुत छोटा है, ठीक है। सो वी ऑलवेज फोकस्ड ऑन द हाईएस्ट पावर विच इज अवेलेबल इन एनी अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली n की वैल्यू आप 1 2 3 4 5 ऐसे कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जाओ। सो 50 का जो आंसर है वो तो 50 ही रहने वाला है, आप n की वैल्यू चाहे 0 लो या 100 लो या 1 लाख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10n जो है उसकी वैल्यू धीरे 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 बढ़ रही है, ठीक है। 100n² की वैल्यू कंपेयर टू 10n थोड़ी सी फास्ट बढ़ रही है, बट n⁴ की वैल्यू डेफिनेटली 100n² से उसका जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो काफी फास्ट होगा, ठीक है। और 10n के साथ कंपेयर करें तो बहुत फास्ट होगा, और 50 के साथ कंपेयर करें तो वहां पे तो कंपैरिजन का कोई स्कोप नहीं है, ठीक है। सिर्फ इनिशियल 2-4 वैल्यू में ऐसा हुआ कि 50 विल बी ग्रेटर देन n⁴, फिर जैसे ही 50 को क्रॉस किया देन द रेट ऑफ ग्रोथ विल बी ट्रेमेंडसली हाई देन दैट स्टैटिक पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 50 रिप्रेजेंट्स स्टैटिक पार्ट कि जो हर कंडीशन में 50 ही रहने वाला है। 10n रिप्रेजेंट्स कि ऐसा पार्ट की भी जो लाइक थोड़ा ग्रेजुअली बढ़ता है, हाँ कंपेयर टू 50 डेफिनेटली उसका ग्रोथ रेट ज्यादा है, राइट। सो अगर आपका सिर्फ और सिर्फ 10n + 50 ऐसा अगर आपका रेट ऑफ ग्रोथ होता देन यू नीड टू कंसीडर n, ठीक है। बट यहाँ पे उससे भी बड़ी एक वैल्यू है, राइट। सो यहाँ पे अगर आप 10n को 50 से कंपेयर करोगे तो 10 ज्यादा है, n² को कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली n² इज ग्रेटर देन 10n and 50, और n⁴ की अगर बात करें तो फिर बाकी सारी टर्म्स इग्नोरेबल है, राइट। सो इन दैट वे वी कैन कंसीडर रेट ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ पे वी कैन से दैट कि द कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n⁴, ठीक है, विच इज द हाईएस्ट पावर इन योर एल्जेब्रिक इक्वेशन, ठीक है। एंड अगेन मान लो यहाँ पे तो n⁴ है, अब n⁴ को सपोज हम इग्नोर करते हैं तो योर रेट ऑफ ग्रोथ विल बी n², नॉट 100n², क्योंकि 100n² में भी 100 तो कांस्टेंट है, ठीक है। सो लाइक हाँ योर टोटल वैल्यू विल बी 100n², बट विच इज नियरली इक्वल टू n²। अगर आप कुछ वैल्यूज के बाद की वैल्यूज को कंसीडर करना लाइक 20 या 30 के बाद की n की वैल्यू कोई भी कंसीडर करोगे तो यू कैन सी दैट के मतलब वहां पे फिर डिफरेंस जो है डिफरेंस विल बी कंटिन्यूअसली रिड्यूस्ड, ठीक है। और कुछ वैल्यू के बाद तो नियरली इक्वल वैल्यू हमें मिल सकती है। नाउ द 3 नोटेशन जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमारा लास्ट टॉपिक था, बिग ओ नोटेशन, ओमेगा नोटेशन एंड थीटा नोटेशन, राइट। वहां पे हमने थोड़ी डेफिनेशन देखी थी। नाउ वी विल सी ऑल 3 नोटेशन इनटू डिटेल। याद है ना सबको तीनों 3 की डेफिनेशन, फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक।
नहीं याद है तो यहाँ पे उसका जो समरी है डेफिनेशन का, दैट इज ऑलरेडी रिटन। ठीक है, सो बिग ओ नोटेशन क्या है? इट इज द असिम्प्टोटिक लेस देन, उसको हम लेस देन बोल रहे हैं। क्यों? बिग ओ नोटेशन कौन सी वैल्यू मेंशन करता है? लोअर बाउंड, अपर बाउंड, क्या मेंशन करता है? एनीवन हैव रिमेंबर्ड? अपर बाउंड। अपर बाउंड। राइट, सो मतलब वो आपको हाईएस्ट वैल्यू देता है। ठीक है, तो योर वैल्यू विल बी डेफिनेटली लेस देन। ठीक है, कि आपको मतलब हाईएस्ट 100 की स्पीड से आप जा सकते हो, तो आपकी जो स्पीड है वो कभी 100 के बियॉन्ड नहीं जाएगी। ठीक है, वो हाँ 80, 90, 95, 70, 60 ऐसी कुछ भी हो सकती है, बट डेफिनेटली इट विल नॉट बी ग्रेटर देन 100। राइट, तो यहाँ पे बिग ओ नोटेशन विल रिप्रेजेंट असिम्प्टोटिक लेस देन, क्योंकि वो अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करता है। राइट, सो Fn is equal to order of Gn implies Fn is definitely less than or equal to Gn. Fn की वैल्यू हमेशा ही लेस देन और इक्वल टू Gn। हाँ 100 हो सकती है बट नॉट ग्रेटर देन 100। ठीक है, so in that way we can represent big O notation. Then next one is omega notation. Omega notation represents lower bound. Right, so यहाँ पे we can say that कि भाई it is asymptotic greater than notation. ठीक है, कि if we write Fn is equal to omega of Gn which implies Fn is definitely greater than equal to Gn, it means यहाँ पे minimum इतना तो है ही उसकी वैल्यू। राइट, इट माइट पॉसिबल उसके ज्यादा हो सकती है या इक्वल टू भी हो सकती है। इक्वल टू का तो डेफिनेटली हर बार चांस होता ही है। ठीक है, आप चाहे बिगो यूज करो, ओमेगा यूज करो या थीटा यूज करो, तो इक्वल टू तो कॉमन है। राइट, तो वी शुड कंसिडर कि भाई बिगो है तो लेस देन, ओमेगा है तो ग्रेटर देन, और थीटा के लिए इक्वालिटी, नॉट इक्वल नहीं है, इक्वालिटी है। ठीक है, क्योंकि वहां पे हम एवरेज वैल्यू कंसिडर करते हैं। ठीक है, सो वहां पे थोड़ा सा वेरिएशन होने के चांसेस है। जैसे अभी हमने यहाँ पे जो देखा कि रेट ऑफ ग्रोथ n/4 है, इसका मतलब है वो एग्जैक्ट n/4 को फॉलो करेगा? नो, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू n/4 होगी। ठीक है, मान लो n इज इक्वल टू आपने 5 लिया है और 5/4 की वैल्यू है 5 स्क्वायर 25 स्क्वायर आई नियर अबाउट 625 आई थिंक है। ठीक है, सो एग्जैक्ट 625 आपको आंसर नहीं मिलेगा, माइट बी 600, 650, 700 ऐसा कुछ आंसर मिल सकता है। ठीक है, बट दैट विल रिप्रेजेंट योर अप्रोक्सीमेट इक्वल वैल्यू। ठीक है, so theta notation means asymptotically equality. Fn is equal to theta of Gn implies Fn is equal to Gn. मतलब we can say that कि भाई approximately Fn और Gn दोनों का execution time same है। ठीक है, बट ऑलवेज वो एग्जैक्ट पॉइंट के साथ इक्वल मिलेगा, दैट विल नॉट बी द केस। थोड़ा तो वेरिएशन होता ही है। ठीक है, इवन आप सेम मशीन के ऊपर सेम प्रोग्राम से सेम डेटा को री एग्जीक्यूट करोगे तो एट दैट टाइम ऑल्सो इट माइट पॉसिबल कि उसमें आपको छोटा मोटा वेरिएशन मिले, क्योंकि सी अल्टीमेटली रिसोर्स एलोकेशन इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो अगर ऑपरेटिंग आप पहली बार जब एग्जीक्यूट करते हो एट दैट टाइम आपके पास मेमोरी कम होगी, ऐसा कुछ होगा, तो इट माइट पॉसिबल कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपको साइमल्टेनियसली एक साथ मेमोरी ना अलोकेट करके दे, और आप जब सेकेंड टाइम एग्जीक्यूट करोगे एट दैट टाइम इट माइट पॉसिबल कि आपके पास इनफ मेमोरी अवेलेबल है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम विल अलोकेट इनफ मेमोरी टू यू। ठीक है, तो वहां पे आपका एग्जीक्यूशन जो है वो वन फ्लो में स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। वहां पे यू नीड टू री असाइन सम मेमोरी। ठीक है, ऐसा हो सकता है, बट इट इज नॉट अ फॉल्ट ऑफ योर एल्गोरिथम। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आपको कभी इक्वल वर्ड यूज नहीं करना है, ऑलवेज इक्वालिटी वर्ड यूज करना है। ठीक है, सो विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द सेम वैल्यू। राइट, सो अगर मैं Fn इक्वल टू Gn भी लिखता हूं ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि भाई उसकी वैल्यू 4.25 है तो 4.25 ही मिलनी चाहिए। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है एंड वी नीड टू एक्सेप्ट दैट डिफरेंस। ठीक है, अगर आप एल्गोरिथम एनालिसिस करते हो और आप लिखते हो Fn इज इक्वल टू Gn, तो सामने वाला समझ ही जाएगा डेफिनेटली इट इज इक्वल टू नहीं है, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू है। राइट, और सेम चीज हमें समझनी होगी। राइट, नाउ इट्स 10:03।
ओके, सो यहाँ से फिर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर, राइट? नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, सो वी विल नॉट गो विद द न्यू टॉपिक. 3-4 मिनट का लेक्चर ही बाकी है. सो अभी धीरे धीरे थोड़ा सा एल्गोरिथम का हम लाइक डेप्थ में जा रहे हैं. सो ऑलवेज फोकस्ड ऑन द टॉपिक. सेकेंड थिंग कि थोड़ा सा ट्राई करो लाइक हमारा जो लेक्चर है वो लाइक विद इन 3-4 मिनट स्टार्ट हो जाए, ठीक है? क्योंकि एक बार टॉपिक स्टार्ट कर दे और फिर इन बिटवीन आप ज्वाइन हो गए तो डेफिनेटली कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट? सो दैट्स वाई मैं थोड़ा इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ, राइट? सो थैंक यू ऑल, यू मे लीव नाउ.